Hello, everyone. Very good evening to one and all present here. Uh, Glad to see so many participants. And for folks who have joined for the very first time, let me just give you a short introduction about Apna, what we have been doing. And so basically, Apna is hosting a community, and this is exclusive program that we have been hosting past few days, I would say, couple of days ago, we started this and basically we are doing this to benefit the users, like to help you all for the career development. So we conduct various sessions, be it in regard to how to prepare your resume, how to prepare for the interview, and it could be kind of anything, like anything which is related to your career. So upskilling, anything that we are conducting a session every week, and these sessions starts from 7 every day. So for more information, it is there in our platform. You can check our website as well. We'll be sharing everything with you. And today we have Vikas with us. Vikas is a team lead and marketing manager. He will be taking you through, like he'll be guiding you on how to apply for a job or how to crack an interview. So he'll help you out with that. Let me give the opportunity to Vikas. Let him introduce himself. And Vikas, yes, you can carry on from there. Hello, hello. I'm Yes, audible. Vikas, you're audible. First of all, welcome to all the students and all the freshers who have joined this session. I am Vipas, and I have been working for more than 4 years as a marketing manager and team leader. And probably today we will share about how you can um, applicant yourself as a fresher and how you can prepare yourself as a fresher. Dipanjan, we actually I want to know, हम वीडियो प्ले करते हैं ना कि स्टार्टिंग में. Yeah. I think people are already here, so we can get started with the session, no problem. Yeah. Okay, let's start our session. So, can you share my PPT? Yeah, I'll quickly share the screen. Just give me 1 minute. Yeah. And we will take questions in the last, है ना? Yeah. या ऑल्सो जिसको भी क्वेश्चंस होंगे वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं. विल बी गिविंग अ चांस टू एवरीवन. जो भी आपका क्वेश्चंस होगा आप लास्ट में या फिर बीच में हम एक क्वेश्चन एंड आंसर राउंड सेशन के जैसे विल टेक आउट योर क्वेश्चंस एज वेल. Yeah, just give us 1 minute. We'll be starting with the session shortly. In the meantime, we're just waiting for others to also come in, and I'll quickly start sharing the screen as well so that you can follow. If anyone here is coming in for the sessions for the last time, like for the first time, please let us know on chat, and we can conduct the session accordingly. If this is your first time, please let us know. Someone is saying वॉइस कैच हुआ पर मुझे लगता नहीं वॉइस कैच हुआ क्योंकि हमें तो एक दूसरे की आवाज अच्छे से सुनाई दे रही है. ओके. आपने यहाँ पे हाँ, अगर किसी को नीचे वॉइस माइक का का इशू हो ऑप्शन रहा है. है ना, आप एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट कीजिए. देयर बी एन ऑप्शन टू जॉइन यूजिंग कनेक्ट यूजिंग डिवाइस ऑडियो और फोन ऑडियो. सो सिलेक्ट दैट so that you will be able to keep connected to the device. Yeah. Hello. Yeah. Is my screen visible to everyone? Yes. Yeah. Yes, Yeah. sir. Okay. Good afternoon. Good evening, sir. Yeah. Good evening. Yeah, because I think you can go ahead. अगर किसी को सवाल पूछने, if you have any questions, please feel free to use the chat. We will be answering Okay. your questions every now and then. We'll take breaks in between to answer questions, and also we'll have a dedicated Q&A section towards the end. But yeah, if you have any doubts, do feel free to use the chat. Yeah, Vikas, over to you. Okay. Thank you so much. So we are going to our first point. Okay, students. First point is how to fill
job application as a fresher. Everyone can see that point. And the first point is read the application instruction thoroughly, carefully, read through the instructions and provided by the HR. हर कंपनी का एक HR होता है, ठीक है, और हर जॉब की अपनी अपनी तरीके की वो होती है, इंस्ट्रक्शंस होती है और अपने तरीके के डिपार्टमेंट्स होते हैं। हर चीज़ का एक अलग क्राइटेरिया होता है, तो आप एक बार जरूर चेक कर लीजिए आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, उसके बाद अप्लाई करें, ठीक है। आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अब अभी हम देख रहे हैं, कलेक्ट ऑल द इन्फॉर्मेशन यू नीड टू कंप्लीट द एप्लीकेशन इंक्लूडिंग योर पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल बैकग्राउंड, वर्क एक्सपीरियंस, पेन स्किल्स एंड रेफरेंसेस। एंड सेकंड पॉइंट इज मेंशनिंग दिस, लाइक अगर कोई फॉर्म ऐसे बोलती है आपको कि नहीं हमें तो 12th पास चाहिए या फिर 10th पास चाहिए, लाइक आपने हायर एजुकेशन सो अपर हायर एजुकेशन ले रखी है तभी हम आपको जॉब देंगे, तो आप एक बार देख लीजिए आप उस चीज़ को फुलफिलमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, वो चीज़ भी बहुत ज़रूरी होती है। यू नीड टू सी दैट कि आप आपके जो सामने वाले पर्सन है वो आपको क्या रिक्वायरमेंट भेज रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपनी अपनी जो चीज़ें प्रिपेयर करके रखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट चीज होती है, देखिए थर्ड पॉइंट जैसे मैंने मेंशन किया, प्रिपेयर योर रेज्यूमे सीवी इवन इफ यू आर एज अ फ्रेशर with little to no work experience. You can still highlight your education, relevant coursework, internship, volunteer work, extracurricular activities, and any projects you have completed. Tailor your resume to the job you are applying for, focusing on skills and experiences that are relevant to the positions. ओके, इस थर्ड पॉइंट का मतलब यही है कि देखिए रेज्यूमे और सीवी सबको बनाना जरूरी है, ठीक है ना, लेकिन वो चीज़ मैटर नहीं करती है आप फ्रेशर है या फिर आप पुराने हैं, लेकिन आपको जो सीवी होता है काफ़ी आपका एक मेंटेन करके चलना चाहिए। लाइक आपने कोई एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज़ करी थी, स्कूल में कोई प्रोजेक्ट करा था, तो उसका कोई रेफरेंस या सर्टिफिकेट्स आपको मिले थे, तो आपको वो एक जगह इकट्ठे करके प्रिंट आउट अपना निकलवा के रेज्यूमे में ऐड करने चाहिए एज अ प्रूफ कि आपने ये चीज़ें आपने ले रखे इन बैक when he was studying. Okay. Sneh, can you move to the 4 point? 4 point. Yes. Next point ये है, complete application form. If there is online application form, fill it out accurately and completely double check it for any spelling or grammatical errors before submitting. If it's a paper application, write neatly and legibly. Like मैंने चौथा पॉइंट यही बोला है कि अगर आप कोई अगर ऑनलाइन किसी भी तरीके से अगर आप एप्लीकेशंस डाल रहे हैं अपनी, तो आप उसको अच्छे से चेक कर लीजिए, ग्रामर मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें भी आपकी रिकॉर्ड करी जाती है। और अगर पेपर वर्क में जाके अगर आप एप्लीकेशंस दे रहे हैं तो आपको वो देखनी चाहिए, डबल चेक करनी चाहिए, इट शुड बी नीट आउट। ऐसे अच्छी राइटिंग्स में होना चाहिए, कोई उसमें ये नहीं होना चाहिए कि आप बीच में कोई भी कलर का पेन यूज करते हैं, अच्छे से एकदम प्रिपेयर करके जाना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट मैंने लिखा, हाईलाइट योर स्किल्स एंड अचीवमेंट्स इवन इफ यू डोंट हैव मच वर्क एक्सपीरियंस, एम्पियरिंग एंड डेवलपिंग अचीवमेंट्स और एजुकेशन सर्टिफिकेशन गेन थ्रू कोर्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप और एग्जीक्यूशन एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। लाइक कि आप अपने जो एक्स्ट्रा स्किल्स है आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। आई हैव डन, लाइक मैंने कंप्यूटर में सीई का रखा है तो मैंने उसका सर्टिफिकेट ले रखा है और मैंने उसको अपने साथ रख रखा है आज तक, वो एक मेरी स्किल्स है, मैं उसको एज अ स्किल मैं अपना शो कर सकता हूँ। लाइक मेरे को अगर कुछ आता है, जैसे मेरे को एक सर्टिफिकेट शायद से मेरे को मार्केटिंग मैनेजर का मिला हुआ है, तो मैंने वो भी रख रखा है क्योंकि वो मेरे को मार्केटिंग एज अ मार्केटिंग मैनेजर मिला था, तो वो भी मैं शो कर देता हूँ अगर मैं कहीं जगह नई जगह इंटरव्यू देने चाहता हूँ। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट पेज? इसमें be honest and transparent. It's important to be truthful on your job application. Don't exaggerate or fabricate information. This could be back to haunt you. लाइक 6 पॉइंट मैंने मेंशन कर रखा है, देखो आपको ये झूठ नहीं बोलना। लाइक अगर आपको एक्सेल चलाना नहीं आता तो आप ये नहीं बोल दोगे वहां पे कि नहीं मेरे को एक्सेल चलाना आता है। आप ट्रूथफुल रहिए, आप एक फ्रेशर है, ये नहीं है कि अगर आप एक अगर आप आपने ये चीज उन्होंने बोल दिया अगर आपको एक्सेल चलाना आता है और आप मना कर दो कि नहीं मेरे को तो जी आता है, लेकिन आपको एग्जैक्टली रियलिटी में आता नहीं है, नेक्स्ट डे क्या होगा अगर वो आपको बोलेंगे चीज ये चीज बना के दो एक्सेल पे, अगर आप बना नहीं पाएंगे तो वो चीज क्या करेगी, आपका आपको वो गलत शो करेगी कि नहीं आपने एक फेक प्रोफाइल क्रिएट करी अपनी, आप जो है वही दिखाने की कोशिश करिए। फॉलो after submitting your application, second point है follow up. After submitting your application, consider following up a polite email or phone call to express your confidence and interest in the position in written about the status of application. This message your enthusiasm professionalism. लाइक आपको ये चीज मैंने नेक्स्ट लास्ट में भी बताई थी, शायद से लास्ट जब मैं मीटिंग सेशन ले रहा था तो मैंने ये चीज मेंशन करी थी कि आपको ना हमेशा फॉलो अप लेना होता है। आप ईमेल के थ्रू या फोन नंबर के थ्रू जिस भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस चीज का जो है ना फॉलो अप जरूर ले, इससे सामने वाले डिपार्टमेंट के लगता है आप उस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड है।
और आप हमारी जो फर्म है उनके लिए अच्छे से वर्क करना चाहते हैं। डेट्स वाई आपको एक फॉलोअप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। उससे क्या है ना, एक एक तो आपका ये लगेगा कि हाँ, ही इज़ लाइक अ प्रोफेशनल काइंड ऑफ वर्कर, थोड़ा ही कैन बी लाइक अ प्रोफेशनल वर्कर फॉर आवर फर्म। ठीक है। 8 पॉइंट है, स्टे पॉजिटिव एंड persistent. Job hunting can be challenging, especially as a fresher, but don't get discouraged. Stay positive, keep refreshing your application materials, and continue seeking out opportunities to align with your interests and skills. 8 पॉइंट यही है। समटाइम्स क्या होता है कि आप एज अ फ्रेशर अगर कहीं जॉब के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू देने, तो समटाइम्स क्या होता है कि वो एप्लीकेशन हो सकते हैं रिजेक्ट हो जाए, और हो सकता है कि वो एप्लीकेशन पेंडिंग रहे, हो सकता है वो आपको जवाब ना दे, पर आपको ना पॉजिटिव रहना है, क्योंकि ना आजकल के टाइम में ना क्या होता है ना, आपकी आपकी तरह ना 10 लोग हो रहे हैं जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो उसमें क्या हो सकता है कि कई बार क्या हो सकता है, आपका नंबर लग सकता है, कई बार नहीं लग सकता एज अ फ्रेशर। पर आपको कभी भी नेगेटिव नहीं होना है, आप उससे, और क्या पता आप भगवान ना पहले अच्छा सोचो, आप पॉजिटिव रहे और एक अच्छी जगह इंटरव्यू देके सेलेक्ट हो जाए। ठीक है। तो हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच रखनी चाहिए अपनी, कि नहीं कोई बात नहीं, मैं इस इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट इंटरव्यू में जरूर सेलेक्ट होऊंगा। मेरा पॉइंट क्लियर हो रहा होगा ये सबको। कैन वी मूव टू द थर्ड पेज? Yes, sir. Snap. So yeah, I've mentioned it. Stay positive and present. Next page, third page. ओके, मैंने यहाँ पे ना क्वेश्चन मेंशन करा है, वेयर टू अप्लाई फॉर द जॉब एज अ फ्रेशर। अब आप अप्लाई कहाँ करोगे? अगर आप एक फ्रेशर हो, लेकिन आप अप्लाई कहाँ करोगे जॉब के लिए, है ना, क्योंकि भी तो एक पॉइंट बनता है। तो जैसे जॉब सर्च वेबसाइट्स होती है, जैसे अब अपना ऐप, कोई मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं और किसी ऐप का भी एग्जांपल दे सकता हूँ, पर अपना ऐप मेरे को फार बेटर लगता है दूसरे ऐप से एज कम्पेयर टू अदर्स। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप में क्या करना है, आप यहाँ पे अपना ऐप डाउनलोड करेंगे, आप वहाँ पे अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, अपना रेज्यूमे अपलोड कर सकते हैं, है ना। और वहाँ पे क्या होता है, वेरियस काइंड्स ऑफ जॉब्स जो होती है आपको वहाँ पे विजिबल होती है। आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स मिल जाएगी एज अ फ्रेशर, आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं प्रोफाइल बनाने के बाद। ठीक है। सेकंड पॉइंट मैंने मेंशन करा था कंपनी वेबसाइट्स। मैनी कंपनीज for job opening directly on their website. If there are specific companies who are interested in working for regulars, check their career pages for opportunities. लाइक अब जैसे मैं बता रहा हूँ सेकंड की वेबसाइट से ही डायरेक्टली, अब जैसे मेरे को महिंद्रा कंपनी पसंद है, मैं महिंद्रा कंपनी में ही काम करना चाहूंगा और किसी कंपनी में काम नहीं करना चाहूंगा, तो मैं क्या करूंगा, महिंद्रा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाऊंगा, वहाँ पे जॉब सीकर्स की तरह जॉब सीक्स करूंगा, वहाँ पे मैं देखूंगा अगर एज अ फ्रेशर। पर ऐसा कम ही चांस होता है कि बड़ी कंपनी जो होती है एक फ्रेशर को जॉब दे, पर आप छोटी कंपनी से स्टार्ट करेंगे, आपको एक्सपीरियंस गेन होगा, फिर आप बड़ी कंपनी में भी जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने मेंशन कर रखा है करियर फेयर्स। अटेंड करियर फेयर्स either in person or virtual. These events often features a wide range of companies looking to fresh talent. हाँ, जैसे मैंने बताया करियर फेयर्स, ये भी एक करियर फेयर्स ही है। ऑनलाइन हम आपको अप्रोच कर रहे हैं कि आप कैसे अपने अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं जॉब के लिए। ठीक है। ऐसे आपको इवेंट जो है ज्वाइन करने चाहिए, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो। ये भी एक आपका जो है ना ग्रोथ कर सकती है मेंटली, आप जॉब के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट मैंने मेंशन करा है नेटवर्किंग। लीवरेज योर नेटवर्क, लेट फ्रेंड्स फैमिली प्रोफेसर्स एंड alumni know you are seeking for job opportunities. Sometimes efforts can be lead to valuable job openings. आप जो है ना रेफरल के थ्रू भी अपनी जॉब लगवा सकते हो, लाइक आपका फ्रेंड है वो, आप उसको बोल सकते हैं मैं एक फ्रेशर हूँ, और वो आपकी जॉब लगवा दे। अगर उसको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर वो भी आपके ऐसा अप्रोच करके आपका जो है ना जॉब के लिए देख सकता है। लाइक फिफ्थ पॉइंट मैंने मेंशन करा है गवर्नमेंट जॉब पोर्टल्स। अब कोई 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 बच्चे होते हैं ना जिनका सपना होता है मेरे को तो गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, तो वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे ना। तो उनको क्या करना है, गवर्नमेंट जॉब्स की वेबसाइट पे जाके चेक करना है। ठीक है। और वहीं पे गवर्नमेंट जॉब्स की वो वेबसाइट पे जाएंगे, उनको काफी सारी वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिलेगी जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए। अब गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन बिल्कुल अलग होती है। वहाँ पे एग्जाम्स देना पड़ता है, फिर आपकी रैंक आती है, फिर आपका फिर फिजिकल होता है, लाइक में काफी सारे स्टेजेस है। तो अगर आपको काफी टाइम है, आप सोचते हो कि नहीं मेरे पे 12th के बाद बहुत सारा टाइम है, मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करूंगा, तो यू कैन सर्च इट ऑन गूगल और यू कैन सर्च इट ऑन यूट्यूब, हाउ टू गेट गवर्नमेंट जॉब ऑफ डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फील्ड्स, जिस फील्ड में आप इंटरेस्टेड है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने मेंशन करा है प्रोफेशनल एसोसिएशन। ज्वाइन प्रोफेशनल एसोसिएशन रिलेटेड टू योर फील्ड, दे ऑफ्टन हैव जॉब बोर्ड्स और करियर रिसोर्सेज टू मेंबर्स। लाइक मेरे को अकाउंटेंट बनना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी सीए के पास लगूंगा, है ना, एक वो एसोसिएशन हो गई। मेरे को एक
एज अ टेलीकॉलर काम करना है तो मैं छोटे बीपीओ में एक जाकर ट्रेनिंग लूंगा। छोटी छोटी चीज़ों पे बड़ी बड़ी चीज़ें होती है, तो सबसे पहले हमें एक सीए के पास एज अ क्लर्क काम करना पड़ेगा। फिर हम धीरे धीरे अकाउंटेंट बनेंगे, फिर हम सीए बनेंगे। लाइक डेट कि हमें कोई भी एसोसिएशन के साथ जुड़ जाना चाहिए। ऐसी अपना भी एक एसोसिएशन की तरह ही काम करता है फ्रेशर्स के लिए। जहाँ तक मैंने देखा है 4 साल के करियर में अपना एक्टिव, मैंने काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज जो है मैंने अपनी लाइफ में खुद देखी है। ऐसी कम से कम 10-12 जॉब एज अ फ्रेशर्स मेरे को दिखती थी, पर मैं ऐसे जैसे सोचता था कि मेरे को अच्छी चीज़ मिले, तो मैं बार बार अप्लाई करता था एज अ फ्रेशर। मैंने कम से कम 10-12 जॉब करी है। ठीक है, कैन वी मूव टू द फोर्थ पेज? Vikas, I think there are Yeah. some questions. If we can answer a few questions before we move on. ओके, नो Yeah. इश्यू, नो इश्यू। Yeah. ओके, Sneha, can you coordinate regarding the questions that have come in on chat and all, so we can Yeah. go So forward? Yeah. we have first question from Swara Krishna. She says that she has graduated from University of Mysore and she has completed her BSc in computer science. She also owns 3 years of experience, but recently she attended an interview. It went quite well, but after having this experience and qualification, she was offered 10K as her salary. So if you could just let her know how to, negotiate the salary bit, since she has an experience. Maybe that is her question. If I'm right, Swarakrishna, if you want to add on, you can directly ask your question to Vikas. लुक 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 सौरभ, आपके पास एक वेपन है। आपके पास किस चीज का वेपन है? एक्सपीरियंस का वेपन है। ठीक है, नेगोशिएट सामने वाली पार्टी करेगी, आप नेगोशिएट नहीं करोगे। आपकी लास्ट सैलरी, आपकी लास्ट सीटीसी, आपने जब एक्सपीरियंस आपको 3 इयर्स का है, तो आपने लास्ट सैलरी का डिस्कशन करा था एचआर के साथ कि मेरी Yes, लास्ट sir. सैलरी? Even, am I audible? यस यस। Yes, sir. For the first, hello, and हाँ, this is Krishna from Mysore. Well, sir, ओके, even he started everything with the introduction, but even I have mentioned, last packages about a 3 lakh per annum as a CTC, and even I was ओके। having a more than, but even I just mentioned only just a 3 3 थोड़ा, LPA only. But even ओके after सौरभ जी, knowing everything, I I don't know what happened to him. ओके I'm not getting any of his like you are not he directly said I'm not finding anything that you worth more than 10K. He just सौरभ said जी, this thing. Suraj, listen. There is not only one firm in your city. There are a number of firms available in your city. It doesn't mean that one company is offering you 10,000, that other will also offer you 20,000. It's up to you that where you should, or where you want to go, where you are seeing your future. If I know about myself that I am not comfortable with 10,000, I definitely regret. I will not regret on that I am leaving this opportunity. I will definitely leave that opportunity at that time, and I will apply for somewhere new place. So that's not a Are you matter getting my of point? the other something else, but the thing is, somewhere I'm not getting the feel that I might feel that I do have a Okay, how do capability. you want to know how to negotiate? Like, I listened this before. You were saying this how to negotiate. No, see, you can negotiate with with of your 3 years of experience. You can explain them that I have been working for 3 years for for some firm, and I have quite experienced that 10,000 is not work for me. It's not up to the mark for me. The skills I know, the power I know is different from as a fresher. आजकल तो जैसे फ्रेशर को ही 10,000 मिलते हैं। आपको तो एक्सपीरियंस है 3 इयर्स का, एंड यू आर सेइंग दिस योर लास्ट सीटीसी वाज 3 lakhs per annum ना? Yeah. Then you should look for another job. Don't negotiate with them. Yeah, If the they are main offering you problem is 10,000, if okay. you negotiate with them now, they will increase your salary by 2-3 thousand, or more often 3-4 thousand, but they will not increase your salary that up to the mark. So you need to find the best job for yourself, and it's not the best job for you. It's there is a power in your hands of 3 years. So you have more opportunities than as a fresher, than as a experience of 1 year person.
2 years process because you have already have experience of 3 years, so you can apply for somewhere where your future have been become more superior. You're getting my point? You're getting my point, Sora? Yes, I'm getting, but I'm confusion about where to apply exactly. I'm not getting the way to apply That's because the I main point, na? See, yeah, you can do one more thing. You can apply on Apna app, but you need to move to your locality. Like you have to go 10 to 15 kilometers away from your home, or you can go up to 20 kilometers away from your home. Then you'll get the job. And we will tell you after the session that how you can search your job, so how you can search job on Apna app. Okay. yeah, fine. If we'll get Thank if you. we'll get the time after the session, we will share you that how you can search the best job for you on Apna app. Okay. Yeah, okay. Thank you. Okay. So thank you so much. Thank you. Okay, we'll pick up one more question, Vikas. It's from Okay. Rahul. His question is, how can a 12th pass graduate apply for high paying salary? Hmm. You can see Rahul. As a fresher, you need to start as a स्मॉल जॉब आई गेस. एज अ फ्रेशर आपको ना आज के टाइम में ना एक स्मॉल जॉब ही मिलेगी. आपको स्मॉल जॉब से क्या होगा, एक्सपीरियंस मिलेगा. फिर जब आपके पास एक एक्सपीरियंस एज अ पावर हो जाएगा ना, तब आप एक हायर पे सैलरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं. लाइक मेरी सैलरी अगर मैं अपनी बात करूँ, जब मैं फ्रेशर था तो मेरी सैलरी 10,000 थी. समझ रहे हो आप 10,000 कितना होता है. और अभी मेरी सैलरी 38,000 है. इट डजेंट मीन कि आई वॉज नॉट लुकिंग एट दैट टाइम फॉर हायर पेइंग जॉब. पर उस टाइम मेरे पे कुछ था नहीं. लाइक आई डोंट हैव नथिंग. आई वॉज माई हैंड्स वॉज हैव नथिंग. सो मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया, मैंने एक्सपीरियंस गेन किया, देन मैंने अप्लाई किया, फिर मेरे पास एक्सपीरियंस आया. दैट्स वाई कि यू नीड टू स्टार्ट समवेयर. तो एज अ फ्रेशर आप जो है ना अभी ज्यादा सपने नहीं देख सकते. हाँ, आप सपने देख सकते हैं, पर आपको ना एक पावर बनानी पड़ती है. एक वॉरियर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है. मेहनत करने के लिए क्या करना पड़ता है, स्टार्ट करना पड़ता है. तो यू नीड टू स्टार्ट फर्स्ट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट, राहुल? इफ आई एम ऑडिबल टू यू? राहुल, अगर आप इस कॉल पे हैं तो आप विकास से बात कर सकते हैं डायरेक्टली, या फिर आप आई थिंक. चैट पे भी आप रिप्लाई कर सकते हैं हेलो, कि गुड इवनिंग। ओके. हेलो हाय, राहुल. I guess he is not here because so ओके, नॉट एन इशू. yeah. बाकी हमने उनको आंसर कर दिया था पॉइंट का. हाँ, उनका क्वेश्चन इज आंसर्ड. यू वांट टू पिक अप वन मोर क्वेश्चन या फिर यू वांट टू कंटिन्यू विद द No, session we and can then take questions. We can take questions just because we have only one page left after this, na? So we okay. can take more questions right now. We have Vivek. Vivek, आप हो यहाँ पे? विवेक शाह. यस मैम, यस मैम। हाँ, आपको पूछना है विकास से, आप डायरेक्टली पूछ सकते Hi हैं. Vivek, how's you Vivek? आई एम He's फाइन सर। listening all my points carefully. I've seen Vivek from long time. यस सर। Yes Vivek. हाँ, आप बताएं, आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? फर्स्टली कि आई एम कंटिन्यू सर्चिंग एनी मोर जॉब, मनी जॉब, बट एनी टाइम रिक्वायर हैज नॉट रिस्पॉन्ड बिकॉज विकास आप हिंदी में भी पूछ सकते हैं, ऐसे कोई वो नहीं है अगर आप विवेक कंफर्टेबल है. आप हिंदी में बात कर लीजिए. हिंदी में हाँ, बात कोई कर इशू लीजिए. मैं आपको हिंदी में जवाब दूंगा. मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में अब बढ़िया हो गया हूँ. नहीं. ओके, कोई दिक्कत हम्म. नहीं सर। क्या होता है कि कई बार अपन अप्लाई करते हैं तो जो सामने वाला जो रिक्रूटर है वो कई बार फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, और रिस्पॉन्स करते भी हैं तो फिर विवेक देखो, आपको दुनिया से अलग बनना पड़ेगा. दुनिया से अलग कैसे बनेंगे? आपको अपने आप को ना पहले अपना सीवी. दीपांशन, प्रॉब्लम ये है ना कि हम ना सबको मतलब भी बता. देखिए मैं आपको बताता हूँ फिर भी. देखो विवेक, सबसे बड़ी चीज क्या है ना, यू हैव टू लुक डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. आपको ना सबसे ज्यादा ध्यान देना है सबसे पहले सीवी कैसा बना रहे हो. लाइक सीवी में आपका कैसा है. आप फ्रेशर हो, देखो आपका फ्रेशर एज अ सीवी आपका ऐसा होना चाहिए जैसा किसी का ना हो. आप उसमें लाइक क्या ऐड कर सकते हैं, स्किल्स ऐड कर सकते हैं, कोई आपने प्रोजेक्ट किया था वो ऐड कर सकते हैं. अगर आपका सीवी क्लियर होगा,
ऐसा फ्रेश होगा तो आपको कोई भी नहीं रखेगा। और आपको ना सीवी मेंटेन करके चलना चाहिए, ठीक है। और बाकी आप किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं सामने एचआर को, लाइक आप कितने रिलीवेंट है, आपको अभी कितने इंटरव्यू अटेंड करे हैं, मैं जान सकता हूँ विवेक? सर आपने मैंने इन अपना ऐसे पर्सन शुरू कोई इन अपना पर्सन ऐसे कोई इंटरव्यू इन पर्सन इंटरव्यू हुआ अभी तक आपका कोई एक ही 2 बार फेस टू सर फेस किया के हूँ लिए? ज्यादा। हाँ, तो विवेक कैसा रिस्पॉन्स था उसमें? उसमें सर बहुत अच्छा नहीं था। हम्म, अच्छा नहीं रहा। हम्म, विवेक हाँ आपको मैं बताता हूँ, पहले पहले ना देखो, हमें ना अपनी कमी जो है वो पूरी करनी होती है, दूसरों की कमी बाद में। पहले हमें अपना आपको इतना प्रिपेयर करना पड़ेगा कि हम डिफरेंट हैं, मैं बहुत डिफरेंट हूँ सर, आप मुझे रखो। अगर आप डिफरेंट दिखोगे तो ही तो डिफरेंट लगोगे। तो सबसे पहले आप जो है ना स्किल्स बढ़ा सकते हैं, पता है कैसे? सबसे पहले घर में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, घर पे बात करने की। अगर आप मम्मी पापा से बात करेंगे, जैसे कि मेरे को आप उनको एचआर बना दो, आप बोल दो आप मेरे एचआर हो, और आपके सामने मैं क्वेश्चंस करूंगा, आप मैं मेरे साथ आंसर्स करना। आप मैं जानना चाहता हूँ विवेक कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप करंटली? करंटली सर बीपीओ के लिए मैं अप्लाई करता हूँ। बीपीओ मुझे के लिए आप ज्वाइन कर रहे हैं? बीपीओ के लिए ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। देखिए एज अ टेली कॉलर आपको सीआरएम आना चाहिए, लाइक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। और लाइक आपको अच्छे से कस्टमर से बात करनी आनी चाहिए। तो एक दो बार ना आप अपने बोलने की स्किल्स पे थोड़ा काम करेंगे ना, उससे क्या होगा, जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो उनको लगेगा कि नहीं बच्चा बोलने में अच्छा है, तो फिर आपको वो जरूर रखेंगे, ठीक है। और आपको मैंने बताया था ना, एक पॉइंट मैंने मेंशन करा था, स्टे पॉजिटिव। क्या होता है ना, कई बार मैंने स्टार्टिंग में, आपको पता है फर्स्ट टाइम में मैंने 10 जॉब करी थी, 10 की 10 जॉब्स रिजेक्ट हो गई थी। इट डजेंट मीन कि मेरे को कोई जॉब नहीं मिली थी, मेरे को मिली थी 11 जॉब। तो यू हैव टू गो 1 आउट ऑफ 1, है ना। इसका मतलब ये नहीं है एक जगह क्लियर नहीं हो रहा है दूसरी जगह नहीं होगा। आप कम से कम सीख करते रहिए, आप बीपीओ की तरफ देखते रहिए। आपको ना थोड़ा बहुत मैं चाहूंगा दीपांजन भी आपको हेल्प कर देंगे इस चीज में कि कैसे बीपीओ की जॉब जो है आपकी स्टेट्स में या फिर आपकी प्लेस पे कैसे अवेलेबल रहेंगी। आप जरूरी नहीं आप अपनी प्लेस पे ही रहेंगे, आप 20-25 किलोमीटर दूर जाइए। वो आपकी जो है ना, फिर आप उनसे कन्वेंस की बात करिए कि मेरा कन्वेंस ऐड कर दीजिए, आप ट्रांसपोर्ट ऐड कर दीजिए, मैं काफी दूर से आता हूँ। तो ऐसी चीजें वर्क करती है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा अपने आप को ऑपरेट करके चलना पड़ता है। यू या आई नीड टू मीन कॉपरेट, विकास, यू आप नीड टू कॉपरेट समवेयर। या आप कोशिश कीजिए कि अगर मेट्रो सिटीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे हायरिंग थोड़ा मास स्केल में होता है, वहाँ पे ट्राई कीजिए एज अ फर्स्ट जॉब, वहाँ पे आपके चांसेस बेटर होंगे। एंड अगर आप बीपीओ का जॉब देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। एंड अगर आप इंग्लिश में उतने कंफर्टेबल नहीं है, लाइक आपको लगता है कि इंग्लिश आपकी इंप्रूव हो सकती है, तो आप ट्राई कीजिए पहले डोमेस्टिक बीपीओ जॉब्स का, जहाँ पे लाइक हिंदी में भी आप टेलीकॉलिंग कर सकते हैं, राइट। तो वैसे जॉब्स आप अप्लाई कीजिए जिसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अगर हिंदी में काम आए तो वो रेलिवेंट होगी। बाकी जैसे विकास ने कहा कि आपको अपना सीवी मेंटेन रखना है, चीज़ें अपडेट अप टू डेट रखनी है, आपको काफ़ी फॉर्मेट्स मिल जाएंगे सीवीज के, तो आप उस हिसाब से अपनी सीवीज क्रिएट कीजिए। एंड या आई थिंक दैट्स अबाउट इट। एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अप्लाई कीजिए, 10 15 20 100 जगहों पे भी आप अप्लाई कीजिए, कोई इशू नहीं है। तो वो भी कम नहीं है आज के डेट में। वह यू नो वन थिंग विवेक, आज के टाइम में ना कंपटीशन काफी बढ़ गया है। या इफ यू नो अबाउट दैट कि एक आप विवेक शाह हो ना, तो देर आर 100 विवेक शाह हु इज अप्लाइंग फॉर द जॉब। यस So you need to understand that. So you have to go one place to another place. आई गॉट। आप ये मत सोचो कि मैंने एक जगह अप्लाई कर दिया, मैं उसका वेट करूँ रिस्पॉन्स का। नहीं, आप दूसरी जगह दे दो। या और जहाँ से भी आपकी इंटरव्यू हो रही है और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आप कोशिश कीजिए उनसे थोड़ा फीडबैक लेने का कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। एंड उस चीज़ों पे आप काम कीजिए, ताकि अगले इंटरव्यूज में वो सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो। अच्छा, सेशन में जितने भी जने ना, सेशन में अभी मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, काफी जने क्या करते हैं ना, जब इंटरव्यू दे के आ जाते हैं वो ये चीज भूल जाते हैं कि उन्हें फॉलो अप भी लेना है। मोस्टली पीपल्स क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि सामने से रिप्लाई आ जाएगा, वो हाँ बोल देंगे तो हम चले जाएंगे, वो ना बोल देंगे तो हम नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं होता। आप वहां से जो है ना, आप उनका मेल लेके आप बोलेगे आप सर कंपनी का मेल दे दो या मेरे को कंपनी का नंबर दे दो। फिर वो पूछेंगे क्यों, आप बोलना कि मैं सर ऐसे ही मांग रहा हूँ। फिर आप घर पे जाना, फिर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना इंटरव्यू का कि आपको कैसा लगा इंटरव्यू में, आपको ये चीज गलत लगी थी कि ऐसा हुआ था, एचआर ने ऐसा गलत बोल दिया था, तब वो मेंशन कर सकते हैं। आपको लगा कि नहीं ठीक है, आपको इंटरव्यू काफी अच्छा था, ठीक है, आपको वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, तो आप बाद में ये रिवर्ट ले सकते हैं। आपको ये रिवर्ट लेना जरूरी है कि सर मेरे इंटरव्यू का आपको क्या रहा,
आप मेरे को एक बार रिस्पॉन्स कर दीजिए डेट व्हेन आई कैन ज्वाइन। आपको इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा डेट आई एम पार्टिसिपेटिंग इन योर कंपनी ऑलरेडी। ठीक है, और किसी के क्वेश्चन हो तो वो भी ले सकते हैं हम अभी। स्नेहा। Yes, Vikas. So we have Ayush Prajapati. Ayush, आप हो कॉल पे? I see आयुष ने पूछा है, हाउ कैन आई गेट 10,000 का पार्ट टाइम जॉब एज अ फ्रेशर? आयुष, you can apply on अपना app. There are number of jobs available from 10,000 to 25,000 I guess. आपको ना अपना ऐप से अप्लाई करना चाहिए, और उसमें ना दीपांशन आपकी हेल्प जरूर कर देंगे। वो आपको लास्ट में बता देंगे कैसे अप्लाई करना है। पर आयुष, मैं ये भी देखना चाहता हूँ आप किस फील्ड में वर्क करना चाहते हैं। फील्ड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन, दैट आप कौन सी पर्टिकुलर फील्ड में जॉब करना चाह रहे हैं। लाइक आप किसमें, मैं जैसे अभी विवेक को बीपीओ में काम करना है, टैली एज अ टैली कॉलर काम करना है, और किसी को एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव काम करना हो सकता है, किसी को एज अ स्टाफ काम करना होता है, किसी को एज अ बैक ऑफिस असिस्टेंट। तो दे आर नंबर ऑफ जॉब्स अवेलेबल ऑन अपना ऐप फॉर 10,000 आई गेस। 10,000 पर मंथ है ना, उसके लिए तो काफी जॉब्स अवेलेबल होंगी दीपांजन, राइट? Yeah, you can definitely find jobs in that price range, but आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कौन सा जॉब करना चाहते हैं, एंड फर्स्ट आप ये प्रायोरिटाइज कीजिए कि कौन से फील्ड में आप जाना चाहते हैं, एंड अकॉर्डिंगली आप कीवर्ड्स यूज करके सर्च कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली अपना में आपको ऑप्शंस मिलेंगे, बट इवन अगर आपको वहाँ भी ना मिले तो आप किसी भी जॉब प्लेटफॉर्म पे सर्च कीजिए। फ्रेशर्स के लिए अगर आप स्टार्टिंग सैलरीज लाइक 10K की रेंज में आप देख रहे हैं तो आई थिंक यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। इवन आप यू कैन टेक वन मोर थिंग, आप अपने फ्रेंड से ही रेफरल ले सकते हैं जो ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहा है, या फिर अपने परिवार में कोई आपकी जॉब कर रहा है उनसे रेफरेंस ले सकते हैं कि आप मेरे को कहीं पे लगा दीजिए 10,000 में। तो 10,000, इट्स नॉट लाइक कि आपको वहीं 10,000 की जॉब मिले ना। देयर आर सो मेनी जॉब्स अवेलेबल इन इंडिया। बस हमें फाइंड करना होता है कि हम कहाँ पे फाइंड करें। और अपना ऐप भी काफी अच्छा है एज अ फ्रेशर जॉब के लिए। ये मेरा कोई पर्सनल ये नहीं है कि मेरे को कोई डिवोशन मिला है वैसे कंपनी से कि नहीं आप उसका प्रमोशन करो, पर मैं ऐसा बता रहा हूँ एज अ मैंने जब 4 साल अगर मैंने अपने ऐप से जुड़ा हुआ हूँ तो मेरे को कितना फायदा हुआ है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको। हाँ, इसने एनी अदर क्वेश्चंस अगर किसी की होती है वो भी देख लेता है। Okay, we have a question from Aniket. Aniket, are you here? Yes, ma'am, I'm here. Yes, Aniket. Would you want to ask the question over the call? सर हिंदी में बात करेंगे तो चलेगा ना? चलेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ सर, एक्चुअली प्रॉब्लम ऐसा था कि मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, वैसे मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ अभी। ओके, तो वेरी गुड। हाँ, कुछ रीजन की वजह से अभी मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो मुझे प्राइवेट जॉब करना है। बट मेरे पास, ओके, मैंने ग्रेजुएशन करा है बीएससी बीकॉम में, बट मेरे पास एक भी कंप्यूटर स्किल नहीं है। सी, आप अगर रिलीवेंट, अगर आपको जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है, किसका क्वेश्चन था ये? सर अनिकेत, अनिकेत अनविकर। अनिकेत, अनिकेत, अनिकेत सी, आपको अगर लगता है कि नहीं आपको जॉब्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, और आपको अभी जो है बहुत जल्दी अप्लाई करना है, और आपको कंप्यूटर स्किल्स नहीं आती है, मैंने एक चीज आपकी नोट करी है, तो आप ऐसी जॉब के लिए अप्लाई करें जहाँ पे कंप्यूटर स्किल की जरूरत नहीं होती है। आप कंप्यूटर स्किल की जरूरत कहाँ पे नहीं होती है? आपको एक एज अ फील्ड सेल्स में कोई आपको कंप्यूटर सेल्स की जरूरत नहीं होती, कंप्यूटर स्किल्स की। आप फील्ड सेल्स का वर्क कर सकते हैं, या फिर आप विदाउट कंप्यूटर आप you can do job of as a mm, 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 हाँ सर, फील्ड वर्क uh, में मेन स्किल क्या होना, कम्युनिकेशन स्किल होना है यार, और कुछ? सर मैंस सी, अनिकेत, मैंस के लिए तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करती है, और हाँ काफी चीजें भी मैटर करती है, एक्सपीरियंस भी। आप गवर्नमेंट जॉब किस चीज की कर सकते करते थे अनिकेत, मेरे को हाँ सर, फिर से? मैं पुलिस फोर्स में हूँ। किसमें? पुलिस फोर्स में हूँ मैं, एसआरपीएफ। पुलिस फोर्स में एस, सो सी, मैं आपको बताता हूँ अनिकेत, इफ यू फाइंड ना, आपको विदाउट कंप्यूटर स्किल्स ना गार्ड्स की भी बहुत अच्छी, होम गार्ड्स की और गार्ड्स की भी अच्छी जॉब्स मिल जाएगी। आप ये मत सोचना कि मैंने गार्ड्स की जॉब बोल दी, डजेंट मीन कि वहाँ पे पैकेज अच्छा नहीं होता। अनिकेत, गार्ड्स जॉब्स में भी मैंने 20,000 के पैकेज देखे हैं। सो हाँ हाँ सर। वो चीज होती है। आप विदाउट कंप्यूटर स्किल्स के लिए गार्ड्स की भी, होम गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, इवन सुपरवाइजर कैन डू विदाउट कंप्यूटर स्किल्स जॉब्स। सो
आप जो है ना अपना ऐप पे एक बार सर्च करते रहिए, आपको हो सकता है आपकी प्लेस के लिए ना मिले, मेट्रो सिटीज के लिए जरूर मिल जाएगी आई गेस। अच्छा, आई होप थैंक यू। अनिकेत, आई होप हाँ अनिकेत मैंने आपका जवाब दे दिया है। हाँ हाँ सर, थैंक यू सो मच सर। इट्स ओके, थैंक यू सो मच अनिकेत। और हाँ किसी भी क्वेश्चंस स्नेहा? Vikas, we have Kirti. She has requested to share few interview questions. So, would you want to Which take this later? Sneha, which interview questions? There are multiple interviews I have given before in my life. So किस तरीके के मैं आपको बताऊं, लाइक किससे रिलेटेड बताऊं, वो भी बता देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर वो मैंने उसका इंटरव्यू दिया होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। Kirti, are you available? कीर्ति, आप अगर कॉल पे हो तो आप बात कर सकते हो। ओके, आई डोंट थिंक कीर्ति इज अवेलेबल हियर। पर लेट्स नहीं, फिर भी इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना आपको लास्ट पीपीटी के पेज पे मेरा जरूर मिल जाएगा, क्योंकि सबके काम जरूर आएगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक ऑल्सो है। हमने हाँ काफी सेशंस किए हैं इंटरव्यू से रिलेटेड, एक्सक्लूसिव के सेशंस हुए हैं। तो आप अगर अपना प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो वहां पे जो भी सेशंस रिलेटेड है आप एक बार उसको भी चेक कर सकते हो। कीर्ति, अगर आप इस कॉल पे हो तो आप यू कैन चेक दी अपना प्लेटफॉर्म एज वेल। Okay. Moving on to the next question. Devi Das, she says that she is 50 years old and she is searching for work from home so that she can take care of her family. She only has basic computer knowledge. Okay, Devidas, you can do BPO job like Amazon's and Flipkart and any other companies which are doing these kinds of applications, which are reforming these applications. पर मेरे हिसाब से ना वर्क फ्रॉम होम जॉब्स का ना आजकल कोई वो नहीं है। आजकल इतना वो ट्रेंड खत्म हो गया, कोरोना में ट्रेंड था वर्क फ्रॉम होम जॉब्स का। पर आई गेस अब आपको वर्क फ्रॉम फील्ड ही जॉब मिलेगी, ज्यादातर तो वर्क फ्रॉम ऑफिस ही मिलेगी। पर आप अगर आपको लगता है कि नहीं वर्क फ्रॉम होम ही जॉब कंसिडर कर रहे हैं तो आप जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां, जोमेटो जैसी कंपनियां ना ऐसे काम देती है, पर उसके लिए आपको ना रिसर्च ज्यादा करनी पड़ती है, वेबसाइट्स पे जाना पड़ता है, और कई बार अपना ऐप पे भी मिल जाती है। अपना ऐप पे भी मेरे को एक बार वर्क फ्रॉम होम जॉब मिली हुई है जोमेटो से, वो भी कोरोना टाइम में। सो यू नीड टू रिसर्च केयरफुल। ओके, इसने कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और फिर या फिर हम पीपीटी कंटिन्यू कर ले। 7:39 हो गए, लास्ट पेज है आई हमारे थिंक बाकी है। पीपीटी कंटिन्यू कर सकते हैं। या आई थिंक चैट के सारे क्वेश्चंस हैव आंसर्ड, राइट स्नेहा? Yes, we have covered all of them. या ओके। विकास, आप कंटिन्यू कर लीजिए, लास्ट में फिर देख लेंगे हाँ, क्वेश्चंस। प्लीज मूव टू द लास्ट पेज स्नेहा। It's Okay. already on the screen, I think. Yeah. Okay, so already in such screen. So My screen is last point visible to was everyone, right? Just wanted to check. Like you can see the last last point page. was Commonly okay. asked Yes, questions, sir. right? Visible, right? Commonly asked question like Yes, as sir. a question, no? Yeah. So Okay. we will start this before. So जो अभी मेरे से काफी लोगों ने क्वेश्चंस पूछा भी था कि कॉमनली asked क्वेश्चंस क्या होते हैं, पर मैं ये सिर्फ एज अ फ्रेशर बता रहा हूँ। सो आप अगर एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन है तो आप ये सेशन आपके लिए शायद से इतना फायदेमंद नहीं रहे, पर एक फ्रेशर्स के लिए जरूर 5-6 लाइनें जो है काफी ज्यादा जरूरी रहेंगी। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट मैंने मेंशन करा है, रीड द एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन थ्रू आउट केयरफुली। wait for a second. Okay, commonly asked questions in an interview. Tell me about yourself. ओके, एचआर डायरेक्टली आपको ये बोल देगा टेल मी अबाउट योरसेल्फ। आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। इस इन सब क्वेश्चंस के मैंने आंसर्स इसलिए नहीं दिए हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर्स जो है ना आपको खुद बनाने हैं, अपने आप को अप्रोच करके, अपने आप को सामने लाके, मिरर के सामने लाके आप एक बार ट्रेनिंग जरूर करना। Tell me about yourself. This question is often used as an icebreaker. Keep your response concise, highlights your education, relevant experience and career aspirations. सबसे पहले इस चीज में आप क्या कर सकते हैं? और टेल मी अबाउट योरसेल्फ में आपको अच्छे से एक बार प्रिपेयर करना है, जैसे मैंने बताया मिरर के सामने अच्छे से बोल के देखिए अपनी एजुकेशन जो आपने कर रखी है, या फिर आपके पास कोई स्किल्स है लाइक कंप्यूटर की मेरे पास एक स्किल है, जैसे मैंने बताया था सी या मेरे को आता है तो मैं उस चीज को बताऊंगा दैट आई हैव नॉलेज ऑफ सी इन कंप्यूटर सी मार्क्स लाइक दैट। आप अपने आप को इतना प्रिपेयर करें कि आपको अगर कोई बोलता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ आप वहाँ पे अटकेंगे नहीं। नेक्स्ट पॉइंट मैंने मेंशन करा था, व्हाई डिड यू चूज दिस फील्ड इंडस्ट्री और इंडस्ट्री इंटरव्यूअर्स वांट टू अंडरस्टैंड योर मोटिवेशन एंड पैशन फॉर द फील्ड यू आर एंटरिंग।
देखो, सबसे पहली चीज, अगर आप एक फ्रेशर है तो आपसे एचआर ये क्वेश्चन जरूर बोल सकते हैं कि आपने यही फील्ड क्यों चूज करी और यही इंडस्ट्री क्यों चूज करी, आपको आखिर इस इंडस्ट्री में क्या मिल रहा था, तो आपको इसका आंसर क्या करना है। देखो, मेरे हिसाब से तो इसका आंसर यही होगा कि मैं इस जगह इंटरेस्टेड हूँ, इस फील्ड में इंटरेस्टेड हूँ, और मैंने ऑलरेडी इस चीज में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ले रखा है। मैंने जॉब में तो एक्सपीरियंस नहीं ले रखा, पर मेरे कोई फैमिली में वर्क करता है, मैंने उस चीज का एक्सपीरियंस उनसे ले रखा है। You need to show the interest in that field, in that particular post. Okay. थर्ड पॉइंट हमने मेंशन कर रखा है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। आपको हमेशा अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है मेंशन करनी है, लाइक बी ऑनेस्ट अबाउट योर स्ट्रेंथ्स एंड चूज वीकनेस दैट यू आर एक्टिवली वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग। अनिकेत, मैं जैसे अनिकेत का एक पॉइंट मेंशन करता हूँ, अनिकेत ने एक चीज मेरे को बताई थी कि वो कंप्यूटर नॉलेज नहीं जानते। वो ऑनेस्ट है अपने साथ, वो अगर कहीं भी जॉब करने जाएंगे वो ऑनेस्ट रहेंगे कि मेरे को कंप्यूटर नॉलेज नहीं आती है पर मैं इस पे काम कर सकता हूँ। और हमेशा अपनी स्ट्रेंथ्स को बताना है, जैसे उन्होंने स्ट्रेंथ अपनी क्या बताई थी कि मेरे को, मैं क्या था, मैं सीएसएफ में काम करता था, तो लाइक कि उनको प्रॉपर एक जो है सिक्योरिटी का काम आता है, ये मेरी एक स्ट्रेंथ है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, इन सब के मैंने आंसर्स किसी के नहीं बता रहा हूँ, मैं एक बार एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप खुद से प्रिपेयर करें अपनी रीडिंग। टेल us about a challenging situation you faced and how you handled it. This question asks your problem solving and communication skill. ठीक है, अब आपको ना फोर्थ मैंने क्वेश्चन से डाल रखा है, मे भी हो सकता है आपसे कोई पूछ ले कि आपने कोई ऐसी चीज आपने आज तक फेस करी है जहाँ पे लगे कि नहीं मैं यहाँ पे फंसने वाला हूँ, यहाँ पे मेरे साथ यहाँ पे कुछ गलत होने वाला है, या फिर वर्क से रिलेटेड बता दूं मैं, ये मैं कोई पर्सनल लाइफ से रिलेटेड नहीं बता रहा। तो आप वो चीज़ भी वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि हाँ मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था, 12th में मेरे एग्जाम्स भी थे और मेरे एक कंप्यूटर एग्जाम भी साथ में था, तो मैंने दोनों के लिए साथ में प्रिपेयर गया था। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आप प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रखते हैं अपनी, और कम्युनिकेशन स्किल्स भी वो आपकी जानना चाह रहे हैं तो उसको उसकी चीज़ भी उनको वो दिख जाएगी आप कितने अच्छे से बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन जो हर एचआर पूछता है एज अ फ्रेशर की, वाई शुड बी हायर यू। ये शायद से मेरी डे फर्स्ट से अप्रोच है, जब से मैं सेशन ले रहा हूँ, कि मैं सबसे अलग हूँ, आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, माई पिक्चर, माई स्ट्रेंथ, माई पावर, माई फीलिंग, माई एनवायरमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। मैं दूसरों से अलग हूँ जब भी मैं आपकी फर्म के लिए बना हूँ और जब भी मैं मेरे को आप रखेंगे। ठीक है, इस पॉइंट का बहुत ज्यादा शायद से ये पॉइंट हर कोई देखता भी नहीं है, पर ये चीज जो है ना बहुत ज्यादा जरूरी है। वाई शुड बी हेयर यू, अभी वाई शुड बी हायर यू। तो इस चीज के लिए आप घर से प्रिपेयर करके जाएंगे कि मैं इस चीज के लिए क्यों फिट बैठता हूँ और मैं ही क्यों इस जॉब के लिए अच्छा हूँ, सबसे बेस्ट कैंडिडेट हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो एज अ फ्रेशर सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। 5 years भी हो सकता है, वो 10 years भी हो सकता है, वो 1 year भी हो सकता है। आप अपने आप को 5 साल के भीतर में कहाँ पे देखते हैं। तो आपको उस चीज का अच्छे से जवाब देना है, आपको प्रिपेयर करके जाना है, आपको देखना है कि जिस पोस्ट के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ उससे ऊपर और कौन सी पोस्ट मैं जो है टैकल कर सकता हूँ उस कंपनी में। उस चीज को आप में वहाँ पे आप मेंशन करना है, उनको दिखेगा कि आप एक हेल्दी और एक पॉजिटिव अप्रोच रखते हो, और जिससे कि आप उनको लगोगे कि बेस्ट कैंडिडेट हो। ठीक है, सेवेंथ वो पूछ सकते हैं कि डिस्क्राइब अ टीम प्रोजेक्ट यू वर्कड ऑन। आप यहाँ पे कुछ भी मेंशन कर सकते हो, लाइक आपने स्कूल में कोई प्रोजेक्ट किया था, या फिर कुछ भी आपने ऐसा कुछ करा हो इन फ्यूचर, और या फिर आप ऐसे कोई बता सकते हो कि हमने ऐसे एक संस्था चलाई थी। आप एग्जाम्पल दे सकते हो, यू कैन डू एट योर पॉइंट, आप अपने आप से इसके पॉइंट्स तैयार कर लेना। ओके, 8 पॉइंट मैंने एक चीज डाली है, व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी। अब आप जिस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो उस कंपनी के अगर आपने रिसर्च कर ली तो बाय गॉड सामने वाले जो एचआर है और सामने वाला जो आपका ओनर होने वाला होगा वो इम्प्रेस हो जाएगा इस चीज से कि आप जिस कंपनी के अप्लाई करने आए हो उसकी 90% चीजें यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट, कि आपको उस कंपनी की कब वो ओपन हुई थी, उस कंपनी का कौन मालिक है, उस कंपनी में क्या क्या वर्क होते हैं, उस कंपनी का मेन ऑडिटोरियम क्या है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिस भी कंपनी के अप्लाई करते हो उस कंपनी के बारे में आप अच्छे से रिसर्च करके जाएंगे। ठीक है, और सब फिर मैंने एक पॉइंट और मेंशन करा है, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस। एक चीज जरूर होना चाहिए, एक चीज जरूर होता है कि वो आपसे बोल सकते हैं कि आपको कोई हमारे से क्वेश्चन पूछना है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, देखो काफी बच्चे बोल मना कर देते हैं, आपने देखा होगा कि काफी एचआर पूछते हैं कि आपको हमसे कोई क्वेश्चन पूछना है,
सब सोचते हैं कि नहीं नहीं सब तो अच्छा ही था, कुछ नहीं पूछना, नहीं गलत चीज़ है। हमेशा आपको वहाँ पे पॉइंट ट्रेस करने चाहिए कि आपको इस कंपनी में ये चीज़ ऐसे होती है, अच्छा मैं कैसे काम करूंगा, डेट हाउ वी विल इनिशिएट। अच्छा इन सब चीज़ों से होता क्या है, वो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स देखना चाहते हैं कि आपके अंदर कितनी कम्युनिकेशन स्किल्स है और आप कितनी अच्छी तरीके से बात करते हैं और कितनी ग्रोथ कंपनी में कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस, अगर एचआर या फिर ओनर किसी कंपनी का पूछता है तो आपको उसका अच्छे से रिप्लाई देना है और काफी आराम से बात करनी है, अच्छी से बात करनी है, हमेशा पोलाइटली बात करनी है सबसे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 9 क्वेश्चंस, दीपांशन 9 क्वेश्चंस ही ऐड करे थे एज अ प्रेशर, आई गेस ये ही होते हैं ज्यादातर। और इनसे ज्यादा पॉइंट्स नहीं होते क्योंकि आप एक फ्रेशर हो तो वो आपको डायरेक्टली ये नहीं बोल देंगे ओके चलो आ जाओ बेटा एक्सेल चलाओ और इसको जो है कंप्लीट करके दो, वैसा कुछ नहीं होता। आप एक फ्रेशर हो, वहाँ पे एक्सपीरियंस लेने गए हो। तो जो 9 क्वेश्चंस मुझे लगता है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है सबसे, ठीक है दीपांजन। और अगर आप किसी के क्वेश्चंस लेने हो तो फिर वो भी ले सकते हैं हम, क्योंकि अभी काफी टाइम है हमारे पास। Yeah, yeah. I think Sneha, we can coordinate with the questions, right? Yes. So we have a question from Vivek again. Vivek, are you there? Yes, Vivek? ma'am. Yes, ma'am. Are you here? Yes. आप पूछना चाहोगे? Yes, already आप क्वेश्चन दे रखा विवेक, है। सबसे पहले विवेक आप ये बताओ, आपको जितने मैंने अभी तक पॉइंट्स बताए आपको क्लियर हुए? यस सर, यस सर, गुड। और जो अभी मैंने लास्ट में क्वेश्चंस बताए आपको कि देखो ये आपको जो है कैसे क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं एज अ फ्रेशर्स, आपके साथ ऐसा हुआ है कि इनमें से भी कोई क्वेश्चन पूछा गया हो, यस सर, 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पूछे जाते हैं? सो यही दैट्स व्हाई मैंने पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन भी करे थे। तो विवेक, मैं आशा करता हूँ इस सेशन के बाद आपको और हेल्प मिलेगी और इस सेशन के बाद आप जरूर एक जॉब, आप इस सेशन के बाद जरूर एक जॉब जरूर स्टार्ट कर पाएंगे अपनी लाइफ में, यहाँ से एक्सपीरियंस लेके ऑफ जाएंगे कोर्स तो, सर। ठीक है। ऑफ कोर्स दैट्स द बैड, देखियो Yeah, देखो विवेक का कॉन्फिडेंस कितना बढ़ गया है। Vikas, I think the question he has is regarding weakness का, कि like when we talk about a weakness, इसका negative impact होने से हम कैसे prevent कर सकते हैं? सी अप्रोच, कम्युनिकेशन अप्रोच यहाँ पे वर्क कर सकती है। विवेक देखो, मैंने कोई अपनी कमजोरी बताई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरी कमजोरी नहीं रहेगी, ठीक है। आपको क्या बोलना है, अच्छा ठीक है यस सर। मेरी ये कमजोरी तो है पर मैं इस पे काम कर सकता हूँ, समझ रहे हो? सर मैं इस चीज को, अगर उन्होंने बोला आपको एक्सेल चलाना है, यू विल बी योर रिप्लाई विल बी लाइक नहीं मेरे को एक्सेल चलाना तो नहीं आता है पर मैं एक्सेल चलाना सीख लूंगा, समझ रहे यस हो? सर, आई विल ट्राई। यस सर, आई विल ट्राई टू यस, लर्न। ओके ओके। थैंक यू सर। We have a next question from Sayantan. Uh, he is into sales and marketing and he wants to change his domain into HR. He also has knowledge because he has graduated from the human HR department, but he wants to change his domain now. Right? सी Say, yeah. सी इसका आंसर यही है, आपने ऑलरेडी एक एसोसिएशन से ऑलरेडी आपने जो है प्रिपेयर कर रखा है तो आपको कौन मना कर सकता है। पर जैसा मैंने आपको बताया कि आजकल के टाइम में ना कंपटीशन बहुत है। अगर आप एक एचआर की तरफ देख रहे हो ना तो हर कंपनी में एचआर देखो इंपॉर्टेंट हो गया है आजकल। पर देखो चीज क्या है ना, मैंने जैसे बताया कंपटीशन बहुत है, आपकी जगह ना 10 जने और होंगे आपके नाम वाले, तो वो आपको क्यों रखेंगे, है ना। एक तो पॉइंट ये होगा, तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी है, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ानी है, एक चीज तो ये हो गई। पर साथ में ना दीपांजन और मैंने एक चीज देखी है, बच्चे क्या करते हैं ना एक ही जगह अप्लाई करते हैं फिर छोड़ देते हैं, 2 जगह अप्लाई करते हैं छोड़ देते हैं, नहीं ऐसा मत करो। कम से कम 10-15 जगह अप्लाई करो, उसके बाद आप रिजल्ट देखना, आपको जरूर मिलेंगे। शॉर्ट में आंसर कर दिया मैंने, ठीक है। So, one more small addition from my side, Shantan. So, whenever you're thinking about changing your stream, right, like in one particular pattern of job to any thing else, you have to like lower your expectations a little bit, because obviously, if you don't have experience, like actual working experience in that domain, people might consider you for an entry level job or a downgrade to the position that you were working in. क्योंकि आपका experience might be in one particular industry, but you're trying to shift to something else. So that is one mentality shift that you have to have when you're applying to jobs. So maybe if you are determined ki I have to go into HR and want to build a career in HR, so maybe for the first year or so,
you should be fine with an entry level job or something which is a downgrade to what you are doing. Obviously, not talking in terms of pay cuts or anything. You can obviously apply to companies which have a higher payout. But yeah, the role that you might get might be like, instead of a manager, you might get an associate level role. So that's something that always happens whenever you're transitioning from one industry to the other or one job role to other. Once you'll get the experience, you will Yeah. become the warrior of that field. Yeah. That's the very main point from the Dipanjan, and please keep it important, okay? जो भी एचआरएस के लिए एचआर जॉब्स के लिए अप्लाई करने वाले थे ना, एक बार मैं नाम भूल गया, क्या नाम था? Shantan. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस Okay. ले लेते हैं. Yeah, we have next question from Jyoti Kumari. Jyoti, are you there on this call? Yes, ma'am. Yes, Jyoti. Would you want to answer? I'm sorry. Would you want to take the question? You want to ask to Vikas directly? Okay. I have question. I have completed my bachelor's in computer application. I have technical skill, but in communication skill, I'm not in good. That's Okay. why after telephonic calls, we didn't get a response. ओके, एंड आपको स्किल्स क्या क्या आती है? React Native. ज्योति, लिसन, आपको अभी मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी लग रही है अभी? मेरी स्टार्टिंग से ऐसी नहीं थी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बढ़ी मैं बताता हूँ. मैंने ना घर पे प्रिपेयर करा, मम्मी से बात करी, पापा से बात करी. मैं क्यों जाऊँ बाहर? मैं घर पे स्टार्ट करा. सबसे पहले मैं घर वालों के साथ कंफर्टेबल हुआ, फिर मैं बाहर वालों के साथ कंफर्टेबल हुआ. धीरे धीरे क्या होता ना, यू हैव टू बी कंफर्टेबल विद योर एंटिटी. ओके, वंस यूल गेट कंफर्टेबल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अपने आप वर्क करती है. सो उसके लिए आपको ना खुद से ही बात करनी चाहिए. अपनी फ्रेंड से आप डेली बात करना स्टार्ट कर दो, 2-2 घंटे, 1-1 घंटे जैसे. पर ऐसे नहीं आप फोन पे बात करें, फेस टू फेस आई कांटेक्ट होना. आप हैंड्स की मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं. आप अगर कहीं पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप वहाँ पे हैंड्स मूवमेंट कर सकते हैं, जिससे उनको लगेगा कि आपकी बॉडी भी उसी स्टेट में वर्क कर रही है जिस स्टेट में आपका माइंड वर्क कर रहा है. सो कम्युनिकेशन स्किल्स देखो, ज्योति, मैं ऐसे बोल के तो नहीं बढ़वा सकता. हाँ, आप बोल के बढ़वा सकते हो अपनी खुद की. उसके लिए आपको खुद फ्रेंड से बात करनी पड़ेगी. घर पे आप एक बार बात कर सकते हैं. आपको अच्छे से बात करनी चाहिए, मम्मी से पापा से काफी टाइम तक बात करनी चाहिए. फ्रेंड से भी 1-2 घंटे फेस टू फेस बात करनी चाहिए. थोड़ी थोड़ी स्टार्टिंग, इससे क्या होगा ना, आपकी स्किल्स बढ़ेगी. पहले आप फैमिली से स्टार्ट करेंगे, फ्रेंड से स्टार्ट करेंगे, फिर आप दूसरों से स्टार्ट करेंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी. समझ पा रहे हैं ना आप ज्योति मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ जी. तो कम्युनिकेशन स्किल्स ज्योति ऐसे ही बढ़ती है. कोई भी इसमें आपकी हेल्प नहीं कर Also, सकता. Jyoti, you have to do by yourself. yes. Also, Jyoti, you can also join अपना community. यहाँ पे हम स्पोकन इंग्लिश के भी सेशंस कंडक्ट करते हैं एवरी वीक. आप Okay. चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, और हम आपको नोटिफिकेशन जरूर भेजेंगे ताकि आप इस पे आप और प्रैक्टिस कर सके एंड यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश. Okay, thank you. वेलकम. ठीक है. और कोई स्नेहा, और कोई क्वेश्चंस हो? अच्छा, Yes. एक ना काफी टाइम हो गया मैं एक चीज देख रहा हूँ इंग्लिश का ना, लाइक आज के टाइम में इंग्लिश काफी इम्पोर्टेंट हो गई है. सबसे पहले मैं पता है इंग्लिश का एक छोटा सा वो बताता हूँ. सबसे पहले इंग्लिश ना समझना सीखो आप. पहले इंग्लिश को आप जितना जल्दी समझना सीखेंगे ना, तो इंसान को ना पहले लर्निंग स्किल्स बढ़ानी चाहिए. स्पीकिंग स्किल्स बाद में, लर्निंग स्किल्स पहले, फिर स्पीकिंग स्किल पे काम करेंगे. एक बार हमें लर्निंग स्किल्स आ गई ना, फिर हम स्पीकिंग स्किल्स पे काम करेंगे तो वो अच्छे से वर्क करेगी आई गेस. मेरी इतनी अच्छी हिंदी नहीं रही, पर मैंने हिंदी को लर्न करा है, उसके बाद मेरी हिंदी स्किल बढ़ गई है. तो लर्निंग से हिंदी बढ़ जाती है, और कोई भी लैंग्वेज. पहले Great. लर्निंग फिर स्पीकिंग. Right, Vikas. So we have one last question from Shrey. Shrey has chat box में लिखा है उन्होंने, I have completed my masters in applied mathematics recently. So what kind of That's great. jobs should I apply for? सी श्री, मैथमेटिक्स, लाइक मैथमेटिक्स ओके ठीक है, चलो आपको एक स्किल्स है आपकी मैथमेटिक्स की. पर यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग. अगर आप मैथमेटिकल्स देख रहे हो तो देयर आर सो मेनी जॉब्स इन दैट. इट्स लाइक एज अ CA, as a job applicant you can apply for as a accountant. But you need to understand first there are different things. Like आप as a अगर आप as a
अकाउंटेंट अप्लाई कर रहे हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड द सॉफ्टवेयर, लाइक सम सॉफ्टवेयर आर देयर, टैली सॉफ्टवेयर, विजी सॉफ्टवेयर, आपको इसकी स्किल्स इंप्रूव करनी पड़ेगी। ठीक है, आप फिर एज अकाउंटेंट भी धीरे धीरे स्टार्ट काम कर सकते हैं, पर यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट दैट कि आप इसके साथ तो ठीक है आपके पास एक स्किल्स है, काफी अच्छी बात है, पर आपको साथ में और चीजें भी देखनी पड़ेंगी, धीरे धीरे स्टार्ट करना पड़ेगा। वो अप्रोच आपकी स्टार्ट जब होगी जब आप खुद को देखेंगे कि मैं किस जगह अप्लाई करना चाहता हूँ। समझ पा रहे हैं? यस सर, यस सर। हाँ, दैट्स इट। और एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, आप जैसे मैंने आपको बताया ना, एज अकाउंटेंट भी काम स्टार्ट कर सकते हैं टैली या बिजी सॉफ्टवेयर सीख के। वो भी बहुत आसान होता है, आप अगर धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे ना तो महीने 2 महीने में आपको वो सॉफ्टवेयर भी आ जाएगा, आई गेस। एनी अदर क्वेश्चंस? That's it. If anyone has any question, you can go ahead. और किसी के पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। Yes, ma'am, sure. I have a one question. विवेक। यस विवेक। जैसे कि आपने कहा कि आप हैंड्स मूव कर सकते हैं, बट हम हैंड्स मूव करते हैं तो बैड इंप्रेशन आता है एचआर के ऊपर, लाइक बॉडी गेस्चर, बॉडी पोस्चर, इससे एचआर क्या को बैड इंप्रेशन विवेक पड़ता है विवेक कि मैंने ना पॉइंट सुना नहीं आपका, एक बार दोबारा रिपीट करें। सर मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि आप कर सकते हैं, हैंड मूव करने से उससे बैड इंप्रेशन आता है एचआर पे कि बंदा यार इशारा करते हुए बता रहा है, हैंड ये नहीं, लाइज देखो पर्सनालिटी है। हैंड मूवमेंट आप गलत ले रहे हो, मैं एक बार बताता हूँ। सी, अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ये मैंने फोन पकड़ लिया अपना और अगर मैं कुछ बोल सर दिस इज द वे टू टेल यू अबाउट दैट सिचुएशंस व्हिच इज, मैं ऐसे ऐसे करने को नहीं कह रहा हूँ। हैंड स्किल्स क्या होती है ना आपको एक्चुअली, और उसके लिए ना आप एक बार यूट्यूब सर्च करना विवेक, और अपना अगर आपको हैंड मूवमेंट्स देखनी है तो एक बार यूट्यूब पे देखना कि इंटरव्यू में हैंड मूवमेंट्स कितनी हेल्प कर सकती है। उससे आपका ना कॉन्फिडेंस ही आगे दिखता है कि आप काफी कॉन्फिडेंट है अपने पॉइंट के ऊपर। ठीक है, मैं उस हैंड मूवमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी पॉइंट को ऐसे ऐसे बोल रहे कि नहीं नहीं ये चीज ये ऐसे वाली हैंड मूवमेंट नहीं कह रहा मैं, वो हल्की हल्की हैंड मूवमेंट होती है, दैट्स द पॉइंट दैट आई वांट टू एक्चुअली इंटेलेक्चुअल्स, दैट्स दिस इज द मेंटल स्टेट, और लाइक ऐसे ऐसे कुछ बोल रहे हैं, तो वो चीज कह रहा हूँ मैं। आप थोड़ा अगर आप ध्यान देते तो आपको समझ में आती है। आपने सोचा कि मैंने वो वाला पॉइंट कह दिया, सॉरी मैं वो नहीं कह रहा था। एनी अदर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट नहीं क्वेश्चंस नहीं हो तो अगर आप अभी पूछ सकते हैं, सेशन ना क्योंकि एंड होने वाला है। मैं सर वही पूछ रहा था जैसे कि अपन की दीपांजन आपने एक बार वो कर लो कि किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर, अदरवाइज फिर सर मैं सोच रहा था जैसे किसी कि अपन हैंड मूव करते हैं तो दिस डू नॉट लाइक दिस पर्सनालिटी है ना it's just a compliment. You can add it or you can re-exist it. You can, it's not complimentary, it's not compulsory. You can do it what you want, but you need to confident on your point. That's the main point. Yes, Vikas. So there are, positive gestures as well. So Vikas is trying to make you That's why understand I'm that saying. thing. Okay, it's a different topic actually. It's when we We talk will about this we study. will Yeah, we we will will discuss about do it some probably in the some future other time. sessions. Yes. So I guess we have attended all the questions. We have picked up all the questions. It's answered. Would like to thank you everyone for joining this session and making it a successful one. A quick reminder, we have shared the feedback form in the chat box. Please fill the form. Please share your feedback. If there is any topic that you want us to cover, please put that as well on the form. In future, we'll be picking up such topics as well for your career development and growth. You can also visit our website. The link is in the chat. You can also find the recording of the previous sessions and all the sessions that we organize. You can go through the recordings if you would want to. And you can register in our Apna community, and you can also comment stating interested or on the comment section there, so that we can send you a notification. You can get a reminder to join the sessions. And thank you, Vikas. It was glad having you here. Thank you for being a great support and showing everyone the right path, giving us a guidance to how to, crack the interview, how to, have upskill ourselves. So it is great having you here in our platform.
Hope everyone had a great learning from this session. Hope to see you all in the next session as well. Good night and have a very great evening. Have a nice good night.